Hello students, how are you? Hope you all are very fine. Children, we are studying about the nationalism in India, and in the previous video we had studied about the Rowlatt Act. Now today we will study about the Khilafat movement. This is the page number 56. While the Rowlatt Satyagraha had been a widespread movement, it was still limited mostly to cities and towns. Mahatma Gandhi now felt the need to launch a more broad based movement in India. But he was certain that no such movement could be organized without bringing the Hindus and Muslims closer together. One way of doing this, he felt, was to take up the Khilafat issue. The First World War had ended with the defeat of Ottoman Turkey, and there were rumors that a harsh peace treaty was going to be imposed on the Ottoman Emperor, the spiritual head of the Islamic world, that means Khalifa. To defend the Khalifa's temporal powers, a Khilafat committee was formed in Bombay in March 1919. A young generation of Muslim leaders like the brothers Muhammad Ali and Shaukat Ali began discussing with Mahatma Gandhi about the possibility of a united mass action on the issues. Gandhiji saw this as an opportunity to bring Muslims under the umbrella of a unified national movement. At the Calcutta session of the Congress in September 1920, he convinced other leaders of the need to start a non-cooperation movement in support of Khilafat as well as for Swaraj. चिल्ड्रन पहले नोट्स देख लेते हैं, उसके बाद मैं इसको समझाती हूँ आपको. तो चिल्ड्रन यहाँ से आप नोट्स लिखना स्टार्ट करेंगे. द खिलाफत मूवमेंट. रोलेट सत्याग्रह हैड बीन अ वाइड स्प्रेड मूवमेंट. It was still limited mostly to cities and towns. Mahatma Gandhi now felt the need to launch a more broad-based movement in India. But he was certain that no such movement could be organized without bringing the Hindus and Muslims closer together. The First World War had ended with the defeat of Ottoman Turkey. There were rumors that a harsh peace treaty was going to be imposed on the Ottoman Emperor, who was the spiritual head of the Islamic world. The Muslims of India decided to force Britain to change her Turkish policy. A Khalifa committee was formed under the leadership of Maulana Azad, Ajmal Khan and Hasrat Mohani. A young generation of Muslim leaders like the brothers Muhammad Ali and Shaukat Ali began discussing with Mahatma Gandhi about the possibility of a united mass action on the issue. अब रोलेट एक्ट जो था, रोलेट एक्ट बहुत बड़े पैमाने पर फैला, लेकिन वो फिर भी सिटी और टाउन तक उतना नहीं फैल पाया जितना कि महात्मा गांधी ने उम्मीद की थी, और वो ज़्यादातर कुछ सिटीज़ और टाउन तक ही सीमित रहा. महात्मा गांधी ने इस बात को फील किया कि इस मूवमेंट को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए ज़रूरत है कि सभी लोग एक यूनिटी में आ जाएं हमारे देश के. अब उस वक्त जो हिंदू और मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस थी वो अलग अलग विचारधारा रख रही थी और एक साथ नहीं थी. जब फर्स्ट वर्ल्ड वार का एंड हुआ तो तुर्की के जो खलीफा हैं, वहाँ के उस वक्त खलीफा थे, वो एम्परर कहलाते थे. तो इस्लामिक वर्ल्ड में उन्हें खलीफा बोला जाता था और उनकी सभी मुस्लिम बहुत इज्जत करते थे. लेकिन जो तुर्की जब वहाँ पर हारा तो ये ब्रिटेन के द्वारा जब वो हारा तो ब्रिटेन उसके ऊपर कुछ कठिन जो थी वो पॉलिसीज़ थोपना चाहता था. तो जो भारत के जो मुस्लिम थे उन्होंने डिसाइड किया कि वो ब्रिटेन को फोर्स करेंगे कि वो तुर्की की जो पॉलिसी है उसको बदले और इस तरह से खलीफा के विरोध में काम ना करे. अब ये कैसे हो सकता था? तो एक खलीफा कमेटी बनाई गई मौलाना आज़ाद, अजमल खान और हसरत मोहानी की लीडरशिप में, और उन्होंने महात्मा गांधी से बात की कि जो है तुर्की के ऊपर जो ये इन्होंने पॉलिसी अपनाई हुई है इसका हम विरोध करना चाहते हैं और प्रेशर ब्रिटेन के ऊपर डालना चाहते हैं कि वो जो तुर्किश पॉलिसी है उसको वो चेंज करें.
तो महात्मा गांधी को ये बेहतर अपॉर्चुनिटी लगी, क्योंकि वो चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम सब एक साथ मिल कर के भारत की आज़ादी के लिए काम करें। और इसलिए जो मुस्लिम लीडर थे उस वक्त मोहम्मद अली और शौकत अली, उन्होंने महात्मा गांधी के साथ जब डिस्कशन शुरू किया तो ये जो नया यूनाइटेड नेशन का जो सपना था वो महात्मा गांधी को साकार होते दिखाई दिया, और जो इश्यूज़ थे वो एक इशू बना करके काम करने का फैसला सामने आया। तो चिल्ड्रन, पहले इसमें आप हेडिंग डालिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। First, what is non-cooperation movement? The movement of non-cooperation was launched on 4th September 1920 by Mahatma Gandhi with the aim of self-governance and obtaining full independence. Purna Swaraj, as the Indian National Congress withdrew its support for British reforms following the Rowlatt Act of 18 March 1919 and the Jallianwala Bagh massacre. तो चिल्ड्रन, महात्मा गांधी ने ये डिसाइड किया कि उन्होंने ये फील किया कि जो भारत है वो वहाँ पर ब्रिटिश किस तरह से इस्टेब्लिश हो पाए, क्योंकि भारतीयों ने ही उनकी यहाँ पर मदद की हुई है, इसीलिए वो यहाँ पर इस्टेब्लिश हो पाए हैं। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि यदि भारत के लोग उनको नॉन कोऑपरेट करना बंद कर दें तो उन्हें यहाँ से अपना सारा बोरिया बिस्तर समेट के भागना होगा। तो उन्होंने नॉन कोऑपरेशन का आइडिया दिया। इसमें उन्होंने बोला कि जो भारतीय हैं वो बॉयकॉट करें जितने भी अवार्ड्स हैं, सिविल सर्विसेज हैं, ब्रिटिशर्स की आर्मी है, पुलिस हैं, कोर्ट्स हैं, इन लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ हैं और काउंसिल्स हैं, स्कूल्स हैं, फॉरेन गुड्स से सब का बॉयकॉट कर दिया जाए। और इससे जो है वो जो है परेशान हो जाएंगे और उनको यहाँ से जाना पड़ेगा। तो इसके बाद 1920 में महात्मा गांधी और शौकत अली जो थे वो दोनों इस प्लान से एग्री थे, और उन्होंने पूरे भारत में घूम घूम कर इसके सपोर्ट के लिए और इसके पॉपुलैरिटी के लिए काम किया। कुछ जो कांग्रेस लीडर्स थे वो सोचते थे कि ये वाला फार्मूला नहीं चलेगा, क्योंकि इससे हिंसा हो सकती है और लोग जो है उनको समझ में नहीं आएगा। लेकिन दिसंबर 1920 में कांग्रेस सेशन हुआ नागपुर में, और इसमें फाइनली सभी लोग इस काम के लिए मान गए, इस प्लान के लिए मान गए, और फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को एडॉप्ट कर लिया गया। नाउ डिफरिंग स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट। चलिए डिफरिंग स्ट्रैंड्स क्या थे इस मूवमेंट में देखते हैं। रेबिलियन इन द कंट्री साइड फ्रॉम द सिटीज़, द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्प्रेड to the countryside. After the war, the struggles of peasants and tribals were developing in different parts of India. One movement here war against talukadars and landlords who demanded from peasants exorbitantly high rents and a variety of other cases. Peasants had to do beggar. The peasants' movement demanded reduction of revenue and abolition of beggar and social boycott of oppressive landlords. Odh Kisan Sabha was set up, headed by Jawaharlal Nehru and others. Within a month, over 300 branches had been set up by the villagers. Tribal peasants interpreted the message of Mahatma Gandhi and the idea of Swaraj in yet another way. The colonial government had closed large forest areas, preventing people from entering the forest to graze their cattle or to collect fuel, wood and fruits. Alluri Sitaram Raju claimed that he had a variety of special powers. He asserted that India could be liberated only by the use of force. तो चिल्ड्रन, अब जो आंदोलन चल रहे थे उन आंदोलन में जो हमारी कंट्री साइड के लोग थे, जो आसपास के गाँवों के लोग थे, सिटीज़ से लेकर के, वो सभी अपने अपने तरीके से स्वराज का अर्थ निकाल रहे थे। हमारे जो भारत है, भारत में पीजेंट्स और ट्राइबल्स थे वो अपना अलग अलग उनका जो मांगे थी वो उनकी अलग थी, उनकी अलग परेशानियाँ थी, तो उन्होंने अपने तरीके से स्वराज का अर्थ निकाला। और वो जो ट्राइबल्स थे वो ताल्लुकदार और लैंडलॉर्ड्स के विरोध में आवाज़ें
उठा रहे थे और उनको उनसे ये चाहते थे कि वो जो उनके साथ बहुत ज़्यादा काम उनसे ले रहे हैं, वेजेस कम दे रहे हैं, तो ये सारा जो है जो पीजेंट्स थे वो उनसे आज़ादी चाहने लगे। पीजेंट्स दिन पर दिन कमज़ोर होते जा रहे थे, आर्थिक तंगी उनको होती जा रही थी, तो वो चाहते थे, उन्होंने डिमांड रखी कि जो रेवेन्यू हो उसको कम कर दिया जाए और नहीं तो जो लैंडलॉर्ड्स हैं उनका सोशल बायकॉट किया जाए। तो उन्होंने जो नाई वगैरह थे उनसे भी उन्होंने ग्रुप बनाया कि इनको इस तरह की सुविधाएं बंद कर दी जाए देना। और इन्हीं में औद किसान सभा एक सेट की गई और उसके बाद जवाहरलाल नेहरू जो थे वो और दूसरे लीडर्स थे वो गए और 1 महीने के अंदर ही लगभग 300 ब्रांचेस जो थी वो विलेजर्स को लेके इस सभा में इस तरह की सभाओं की तैयार कर ली गई। ट्राइबल पीजेंट्स थे वो महात्मा गांधी के जो मैसेज था स्वराज का उसको वो अपने तरीके से ले रहे थे। उनका ये मतलब था कि उन्हें जो चाय के बागानों के जो मज़दूर होते थे उन्हें अपने घरों में जाने की परमिशन नहीं होती थी, तो उन्होंने सोचा कि स्वराज के द्वारा हम जो है वो अपने घरों तक जा पाएंगे और उन्होंने अपने जो मालिक थे उनका विरोध करना चालू कर दिया। उनकी जो चीज़ें थी उनके ऑर्डर होते थे उनको मानने से इनकार कर दिया। जो और जो कॉलोनियल गवर्नमेंट के जो लोग थे उन्होंने जनता के ऊपर उनके ऊपर भी बैन लगा दिया गया था। वो वहाँ पर अपने जानवरों को नहीं चरा सकते थे, फ्यूल वुड नहीं इकट्ठा कर सकते थे, फ्रूट्स नहीं इकट्ठा कर सकते थे। तो उनको भी उन्होंने भी कहा कि ये हमारे अधिकारों का ये हनन कर रहे हैं और इसके लिए उन्होंने भी अपना स्वराज की परिभाषा को उन्होंने अपने तरीके से लिया कि हम विरोध करेंगे और हमारा जो अधिकार है हमारे जंगलों में प्रवेश करने का उसको हम ऐसे ही नहीं जाने देंगे। अलूरी ने सीताराम राजू जो थे वो क्लेम करते थे कि उनके पास स्पेशल पावर है और वो लोगों को स्पेशल पावर के द्वारा बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, जादू टोना वगैरह जो है वो करके और बहुत सारी चीज़ें दिलवा सकते हैं। वो ये इस चीज़ में भी विश्वास करते थे कि जो है जो स्वराज है वो हमें सिर्फ अहिंसा के द्वारा नहीं मिलेगा, वो हमें सिर्फ हथियारों के द्वारा मिलेगा। तो इस तरह से जो था सभी ने जो गांधी जी का आंदोलन था नॉन कोऑपरेशन उसको सभी ने अपने अपने तरीके से लिया हुआ था, अपने अपने फ़ायदे अपने अपने व्यू से, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने लिया हुआ था। तो चिल्ड्रन आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक